So let's start our class. Let's start. So we were on the structural part of the budget. We saw the financial accounts, consolidated fund, contingency fund, public accounts of India. Then we also saw what these terms are. Every year, yes, Pooja, you can still be the part of the WhatsApp group. I have no issues in that. Okay. Anyways, only few people can post on it. So I'll be posting all the material there. So you don't have to worry about that. अपने कोई एक दो CR जो भी whosoever is the CR from BA program can just coordinate with that teacher. I'll give you his or her number, whatever is the case, and I will brief that person that how much I have done, so that आप उनको भी पता चल जाए कि अच्छा ये कोर्स ऑलरेडी हो चुका है, and then that person can take it forward. Then ये हमने देखा था एक्चुअल्स, बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स क्या क्या होते हैं. Then we saw the revenue receipts, tax receipts. As I told you, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये नॉन टैक्स receipts है. And then उसके बाद you have capital receipts, which is further divided into नॉन डेट मेकिंग एंड डेट मेकिंग. डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स को हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं. दिस इज ऑल वी हैड सीन इन द प्रीवियस क्लासेस एज वेल. नाउ कमिंग टू द एक्सपेंडिचर साइड हमें आज डिटेल में करना है. बट जैसे हमारा रेवेन्यू साइड था वैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर साइड भी होता है. इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली ब्रीफ थ्रू कि क्या क्या पोर्शंस हैं जो आज हम कवर कर रहे हैं. सो वी विल सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वी विल सी कैपिटल एक्सपेंडिचर. We will see these technical terms, these 4 technical terms. We already know somewhat about Sonal. I am not sure कि attendance कैसे होगी उस केस के अंदर. That you would need to confirm with your instructor जो भी होगा कि कैसे attendance हो रही है. ठीक है. My attendance, I will start taking my attendance after once the sections have been broken down. ठीक है. सो यूजली टीचर्स आई डोंट थिंक अभी ऑनलाइन में अटेंडेंस का कुछ इशू क्रिएट कर रहे हैं. बट अगेन दैट्स अगेन फ्रॉम टीचर टू टीचर. सो वी विल डिस्कस फिजिकल डेफिसिट. हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस किया था व्हाट फिजिकल डेफिसिट इज. वी हैड सीन what revenue we have seen also what revenue deficit is, but आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. I will talk about it. Don't worry, Karishma will talk about it. Then so we will see what effective revenue deficit and what primary deficit है. ये दो हमारे ये जो definition है ये चारों की, ये आज हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. Then उसके अलावा what we will also see is how to calculate these. We will see the calculation portion. ये देखो आपने यहाँ पर पूरा वो बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है. All of this is also I will also send it to you on your WhatsApp, so you can check that out. And then what we will also see is that where is your money coming from and where is your money going. So we will see that अच्छा हमारा पैसा overall अगर if the government of India is earning 1 rupee, then how is that 1 rupee being collected. So we will see that analysis. It's not very important, but you should know that अच्छा ये head ज़्यादा important है, ये head कम important है. So it puts things into perspective. ठीक है. And similarly, where does the money go? We will see that. And we will see then the deficit trends कि अच्छा deficits हमारे कैसे कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं. And then this portion we had already seen in the previous class, जहाँ पर हमने ये देखा था कि ये total receipts किस तरीके से बन रहा था. जैसे हमारी revenue side थी guys, जैसे हमारी revenue side थी in terms of receipts, वैसे हमारी expenditure side भी है in terms of expenditure. So these are all your expenditures which are recurring in nature. I mean every year this is something that I have a liability for. ठीक है. तो ये वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए. नाउ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आइटम आती है, जो बहुत ही मेजर बर्डन लेके आती है हमारे लिए, वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स. व्हाट आर दीज इंटरेस्ट पेमेंट्स गाइज? बताओ ये इंटरेस्ट पेमेंट किस चीज़ की है? जो लोन हमने लिया था, बेसिकली जो हमने
कैपिटल रिसीट्स में कौन से हेड में लिया था? डेट मेकिंग हेड में। डेट मेकिंग हेड में जो हमने बोरोइंग्स करी हैं, द बोरोइंग्स दैट वी हैव डन, तो उन पापों का जो आप EMI चुका रहे हो, दैट इज बेसिकली योर इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू शुड सी। ठीक है, none of you would have credit cards, right? I don't think you're turned 18 year. कुछ लोग, anyone has a credit card? किसी के पास है क्रेडिट कार्ड? No sir. अच्छा, सो गाइज इंटरेस्ट पेमेंट, पूरी क्रेडिट इंडस्ट्री जो होती है ना, वो इस इंटरेस्ट पेमेंट पे ही चल रही है। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी श्योर इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, इंटरेस्ट, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हो, अगर आप देखो तो क्रेडिट कार्ड का अगर फॉर एग्जांपल बिल आपका आ रहा है 1000 रुपये, ठीक है, तो वो 1000 रुपये अगर आपने कोई शॉपिंग करी, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देखना, तो वो आपको बोलेगा कि अच्छा इस मंथ के एंड पे ये जो पैसा आपने 1000 रुपये खर्च किया, ये 28 दिन के लिए तो फ्री, अपने साइकिल के लिए तो फ्री है, 28 डेज के लिए तो फ्री होता है, डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल। फॉर एग्जाम्पल योर साइकिल इज 1st to 28 ऑफ एवरी मंथ, तो आपने 14 तारीख को खरीदा है, 15 तारीख को खरीदा है या 27 तारीख को खरीदा है, 28 तारीख को आपकी बिलिंग साइकिल है, तो 28, ये आइडली 28 डेज के लिए फ्री है अगर आप फर्स्ट को ही खरीद लेते। उसके बाद वो कहता है कि मिनिमम बैलेंस आपको पे करना है, मिनिमम बैलेंस आपको पे करना है, तो ये आपको बोलेगा कि अच्छा ये 1000 रुपये आपको ड्यू है, आप 200 रुपये पे कर दो। अगर आपने ये 200 रुपये पे नहीं करे तो आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, और एक बार चाहे आपने ये पे भी कर दिया तो जो बाकी 800 रुपये है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज, ठीक है, दैट इज समवेयर अराउंड 36 to 40% पर एनम। तो इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आप अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। सो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज करना मतलब इट्स अ ह्यूज आर्ट, दैट हाउ डू यू नॉट पे ह्यूज इंटरेस्ट पेमेंट्स। एंड अगर आपने कहा कि यार मैं नहीं पे करूँगी इस इंटरेस्ट को, तो क्या होगा, तो आपकी ये लोग क्या करेंगे, ये आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब कर देंगे। अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे और ये अगर आपका ज़्यादा ड्यू रहा, ठीक है, ये से आपने ये पे नहीं किया, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, जिसको आप बोलते हो सिबिल स्कोर, ये आपका ख़राब हो जाए। 800 में से होता है ये सिबिल स्कोर, ठीक है। और अगर आपका ये सिबिल स्कोर ख़राब हो गया तो उसकी वजह से फ्यूचर में आने वाले 5-7 साल में अगर आपको कभी स्टूडेंट लोन की ज़रूरत हुई, अगर आपको कभी पर्सनल लोन की ज़रूरत हुई, कभी आपको हाउसिंग लोन की ज़रूरत हुई, एक तो आपको मुश्किल से मिलेगा, दूसरा द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच दैट यू विल गेट इट विल बी हायर। So be very careful in life whenever you are going you'll probably start earning in 3-4 years, but you have to be very wary of the fact credit score is basically ये जो हम ये देखते हैं कि कौन कितना अच्छा बोरोवर है, रितिका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट स्कोर, माई क्रेडिट स्कोर इज परहैप्स वन ऑफ द बेटर वंस, आई हैव 784, ठीक है। तो ऐसे अगर आप उसका क्रेडिट स्कोर देखोगे, विजय मान लेगा, तो उसका स्कोर बहुत ख़राब होगा क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट करा हुआ है। तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी फॉर ऑल द बैंकिंग इंडस्ट्री की मैं कोई बैंक मुझे जानता थोड़ी ना, ठीक है, मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ और कहता हूँ यार मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दें, तो वो मुझे जानता थोड़ी ना है। तो व्हाट ही विल सी इज ही विल चेक इन टू माई सिबिल स्कोर एंड सी कि अच्छा ये इसकी प्रीवियस बोरोइंग कैसी है। तो सारे बैंक्स इस पर रिपोर्ट करते हैं अबाउट एवरी बोरोवर और एवरी प्लेयर। Credit score, you can search at how credit score is created. You can actually improve it as well. And then I mean I don't want to get into technicality, मुझे भी खुद भी पढ़ना पड़ेगा, मैंने I think 1-1.5 साल पहले पढ़ा था ये चीज़ क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, बट व्हेन आई सॉ माई क्रेडिट स्कोर आई थॉट 784 से और क्या इम्प्रूव करा जाए। तो इसीलिए आपको बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस and a lot of this information have now started coming out. For example, Cred, there is a startup called Cred. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो ये आपको रिमाइंडर्स वगैरह देता रहता है कि अच्छा बॉस आपकी ये पेमेंट ड्यू है, सो दैट यू डोंट हैव टू पे दिस ह्यूज अमाउंट। तो ऐसे स्टार्टअप्स भी आ गए। इफ़ यू पे द इंटायर 1000 अमाउंट विद इन दैट ड्यू पीरियड, देन उसके बाद आपके कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कुछ नहीं होता।
But the problem here is what credit card does. Credit card is a kind of a scheme where you are kind of lured into the fact कि बॉस मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, मैं फिर भी उसको चीज़ को खरीदना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री क्या करती है? क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री आपको सारे लोगों को एक इस तरीके से बॉक्स में डाल देती है. उनके लिए बेस्ट लोग वो हैं जो पैसा भी बहुत ज़्यादा बोरो करते हैं और टाइम पे भी पैसा नहीं करते. ये से फॉर एग्जांपल मनी बोरोड, जो लोग टाइम पे भी पे नहीं करते और पैसा भी ज़्यादा बोरो करते हैं, ये क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि यही आपको यही इनको हम बोलते हैं कैश काउज. कैश काउज ये क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छे लोग हैं. और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इन्हीं को सबसे पहले टारगेट करती है, जो जल्दी जो शुरू में कॉर्पोरेट्स में आते हैं ना कि बॉस मेरी 50,000 रुपये सैलरी है बट मुझे आईफोन खरीदना 1.5 लाख रुपए का. ये स्कैम है इसमें. तो यू आर बीइंग फोर्स्ड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. ठीक है, उसकी वजह से आप यहाँ पर लाई करना शुरू करते हो. तो और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में मेरे जैसे लोग जो यहाँ पर लाई करते हैं वो सबसे बेकार लोग हैं, क्योंकि मैं इनसे पॉइंट्स भी लेता हूँ सारे. मैं उनको इमीडिएटली पैसा चुका देता हूँ और मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता इनसे. मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है वो लिमिट करा हुआ है. मेरे लिए क्रेडिट कार्ड इज़ जस्ट फॉर इमरजेंसी. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन स्वाति, इट डिपेंड्स ऑन द साइकिल दैट यू हैव. जब भी आपने शुरू किया होगा कार्ड तो आप अपना उसका साइकिल चेक कर लो क्रेडिट कार्ड का, तो उसमें साइकिल लिखा होगा कि इस डेट से इस डेट तक है. फॉर एग्जांपल मेरा आई थिंक 17th-18th से शुरू होता है क्रेडिट कार्ड का साइकिल. अगेन 28 days 30 days जो भी है उसका. सो बी वेरी केयरफुल गाइज. ये इंटरेस्ट पेमेंट की बात आई, सो आई थॉट एटलीस्ट फाइनेंशियली यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. ठीक है, एंड देयर आर वेरी गुड स्टार्टअप्स जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. देयर इज वन कॉल्ड, ऑल ऑफ यू आर ऑन लिंक्डइन गाइज? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so if you are there on LinkedIn, follow. There is this new startup by the name of FinShots. ठीक है, really nice guys. I've had this thing of interacting with them. I am Ahmedabad guys, and good. They're spreading out good information regarding the credit industry and the insurance industry. ठीक है, so follow these guys. चलो now, so interest payment guys, आप लोन तो ले लेते हो. Cash cow, it's called, they are called cash cow because they are the most earning members of the industry. For example, a lot of you, अगर मैं all of you are on Instagram guys? All of you are on Instagram? Yes. Instagram पे अब आप लोग अपने फीड में एड्स देखते हो? Yes. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब इंस्टाग्राम का मेन पैसा कहाँ से आता है? इंस्टाग्राम का मेन पैसा एडवर्टाइजमेंट से आता है. दीज आर एडवर्टाइजिंग कंपनीज. डोंट थिंक ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट. दीज आर नथिंग गाइज, दीज आर एडवर्टाइजिंग कंपनीज. गूगल 80% रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आ रहा है उसका पैसा. ये आपको सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड इसलिए की जा रही हैं बिकॉज यू आर गिविंग देम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. Instagram knows more about you than your parents do. So that is how deep information is now available on the web. So based on that, based on all of these factors, अब Instagram ने आपका प्रोफाइल मोनेटाइज करने के लिए क्या कहा है कि अच्छा ये जो सारी लड़कियां हैं ये हैं 18 से 21 की एज ग्रुप में. ठीक है, प्रॉबली अच्छा ये जो है ये फैशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है. ये फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा को फॉलो कर रही है, ये फैशन के कुछ आइकन्स को फॉलो कर रही है. सो दे हैव नेक्स्ट लेयर है, दे हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस गर्ल इज मोर टुवर्ड्स फैशन. एंड फिर उसके बाद फैशन इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग जो हैं जो जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने अपने एड्स डाले हुए हैं. तो दे ट्राई टू कनेक्ट यू टू दिस. सो फॉर दोज फैशन इंडस्ट्री यू गाइज आर बिकमिंग कैश काउस. ठीक है, नाउ फॉर मी फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैज हैपेंड इज, ये सारा फेज मैंने भी देखा. ठीक है, देन फॉर मी आई एम इनटू अ लॉट ऑफ जिमिंग. तो मेरे लिए वो मेरे सारे के सारे एड्स क्या आते हैं, मेरे लिए सारे एड्स आते हैं कि अच्छा ये नया डंबल्स खरीद लो, होम डंबल्स खरीद लो, ये नई जिमिंग टी शर्ट खरीद लो. या फिर मेरे पास नए दूसरे तरीके के एड्स क्या आते हैं, आई हैव अ वेरी स्मॉल किड, तो उसमें एड्स आते हैं कि अच्छा ये वाले नए डाइपर आए हैं, या फिर ये वाले नए बॉटल्स आए हैं.
ठीक है, तो इस तरीके से यू दे आर changing my profile from they know in their algorithms know that this guy is not just a bachelor now, this guy also has a child, so let us feed him a lot of child oriented ads. तो मैं उस इंडस्ट्री के लिए अब कैश काउ बन गया हूँ and I do buy stuff. मुझे कोई ये चीज़ अच्छी लगती है तो you click on that and then you buy it. So that is basically किस इंडस्ट्री के लिए आप एक बहुत ही रेवेन्यू मेकिंग सोर्स हो गए, ठीक है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कैश काउज. नाउ पीपल फ्रॉम बिजनेस जो भी कॉमर्स वाले हैं दे शुड बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड बिकॉज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू डू इन जनरल अगर आप मार्केटिंग और सेल्स के तरफ जाते हो तो, ठीक है. नाउ एंड a lot of this, why I know a lot of this, because there are a lot of algorithms that I work with, ठीक है. So I've just completed almost all on the verge of my completion of my masters in artificial intelligence. So we do all of this, that किसको कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन किस एरिया में इंटरेस्टेड है. तो फॉर एग्जांपल योर फीड्स कि अमेजोन में आपको नेक्स्ट व्यूड कौन सी कमोडिटी होगी, या कस्टमर्स हु बॉट दिस विल आल्सो बाय दिस. Social dilemma also touches upon these factors, but I wanted to learn the technology कि how is this all done. So that was an interesting thing. Okay, now let's come back to interest payments. So interest payments गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये आपको सिर्फ अपने पापों के लिए नहीं पे करना, आपको उन पापों के लिए भी पे करना है जो पिछली गवर्नमेंट्स ने कर दिया है. सो ये तो बोरोइंग जो है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ये तो पास्ट बोरोइंग्स के लिए भी है ना. जो आपने पुरानी बोरोइंग्स करी थी, वो पुरानी बोरोइंग हो सकता है 15 साल पुरानी बोरोइंग्स हो जो किसी और गवर्नमेंट ने करी हो. सो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर आइटम बन जाती है, और इस आइटम को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते. तो आप किस तरीके से इसको कम कर सकते हो, आप करंट बोरोइंग्स धीरे धीरे अपनी कम कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है हमारी कम हो. समझ में आएगा इस कंसेप्ट की, ये फ्यूचर को, अगर आपको फ्यूचर में अपना इंटरेस्ट पेमेंट कम करना है तो आपको आज से अपनी बोरोइंग्स कम करनी है. नेक्स्ट इशू इज सब्सिडीज. नाउ सब्सिडीज एज आई टोल्ड यू, सब्सिडीज जो होती है वो 3 मेजर टाइप की सब्सिडीज होती हैं, ठीक है. The first major type of subsidy is your food subsidy, then you have your fuel subsidy, and then you have fertilizer subsidy. ये 3 major subsidies हैं. Then apart from that you have establishment expenditure. Establishment expenditure is basically expenditure running for day-to-day government. So for example salaries, pensions, all of those expenditures that the government has to do on basically on yearly basis. So something like my salary is coming directly from this. क्यों? क्योंकि मुझे दे रही है पैसा गार्गी कॉलेज, और गार्गी कॉलेज को पैसा कौन दे रहा है? यूजीसी. सो यूजीसी जो है वो यहाँ से पैसा, यूजीसी को पैसा यहाँ से बजट से पैसा मिल रहा है, और वहाँ से कॉलेज के थ्रू होते हुए मेरे पास आ रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर. Now, apart from that, there are 2 major things that you should know here. First is central sector schemes. ठीक है. Now, we need to understand what these central sector schemes. ठीक है. ये मैं अभी यहाँ पर central sector schemes और वो आपको explain कर रहा हूँ. देखो, Constitution of India में, now this is a question to political science student. कहाँ पर Constitution of India में state list, central list and concurrent list है? सेवंथ शेड्यूल में. 8th schedule is language, प्राची. सेवंथ शेड्यूल में, ठीक है. तो 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, फिर चैप्टर्स होते हैं, इस तरीके से शेड्यूल चलता है, फिर सेक्शंस होते हैं. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मतलब आई एम तो एडिक्टेड, मतलब जब मैं पढ़ता था तो आई वाज एडिक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब मेरे दिमाग में सर ये चलता रहता था कि अच्छा ये इसके बाद ये क्या आता है, कौन सा आर्टिकल आता है, ठीक है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग सिविल्स के लिए प्रिपेयर करोगे, एक पॉलिटी का चार्ट अपने रूम पे लगा लो जिसमें सारे आर्टिकल्स होते हैं, एक हिस्ट्री का लगा लो और 2 मैप्स लगा लो, वर्ल्ड मैप एंड इंडिया का मैप. देन 7th शेड्यूल, ठीक है. अब 7th शेड्यूल क्या कहता है? 7th शेड्यूल कहता है कि बॉस हमारी जो है वो फेडरल प्रिंसिपल है, और हमारे पास एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है.
हर एक के अंदर टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाले जो एरियाज़ हैं वो सारे इसमें हैं, सेंट्रल लिस्ट में। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे जो हैं हमें यूनिफाइड चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यूनिफाइड चाहिए, नहीं तो हर स्टेट अपनी आर्मी लेके आ जाएगा। यूपी की तो अपनी खुद की इतनी बड़ी आर्मी है कि अच्छे को चैलेंज कर देगी कंट्री को। ठीक है, यूपी अपने आप में वर्ल्ड का 6ठा लार्जेस्ट कंट्री है, पता है ना ये लोग ये बात। यू नो दिस गाइज, आई होप यू नो दिस। No, sir. यूपी की पॉपुलेशन इज अराउंड 300 अराउंड 300 मिलियन। ठीक है, अगर ये देश बन जाए तो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से देश है ये। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू पाकिस्तान एंड यूएस, यूपी अपने आप में। ठीक है, तो इसीलिए लोग यूपी में कलेक्टर बनना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था मेरे फ्लैटमेट्स हैं, तो उनमें से कपल ऑफ देम आर राइट नाउ डीएम्स इन यूपी। तो इसीलिए लोगों को शौक होता है अगर वो बनना है तो इधर बनना है। खैर, नाउ बट I'll give you the insights on UPSC and कि उनका डाउन साइड क्या है इस बनने का। ठीक है, कभी किसी और क्लास में I'll tell you now। सो ये जो है, और ये तो आपकी लास्ट क्लास है। अरे कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड तो क्लास रहती है ना, और अटेंड तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलो। ओके सर। सो उसके ये जो है, ये फाइनेंस, डिफेंस, ये वाले जो कॉमन एरियाज हैं, ये तो हमें नेशनल सिक्योरिटी, ये तो नेशनल इश्यूज हैं, ये बाइंड करने के लिए होते हैं कंट्री के लिए, और ये अलग अलग नहीं हो सकते। बट मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं जिससे सिटीजन कंसर्न्ड होता है, देखो फाइनेंस से मैं डायरेक्टली, चलो ठीक है मेरे पास पैसा है वो अलग बात है। ठीक है कि पैसा मैं करेंसी यूज़ कर रहा हूँ, बट और वो अक्रॉस द कंट्री सेम करेंसी यूज़ हो रही है, तो ठीक है यहाँ पर मेरा डायरेक्ट रेलेवेंस आ जाता है। बट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को मैं फील नहीं करता, मैं डायरेक्टली इस चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता कि डिफेंस पे बेसिकली बॉर्डर पे चल रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स अपने आप गवर्नमेंट कर रही है, तो आई एम नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इट। बट सिटीजन जो होता है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन से, क्योंकि यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आ जाता है सैनिटेशन, यहाँ पर आ जाता है एजुकेशन, एक्चुअली कंकरेंट में। ठीक है, देन यहाँ पर और भी बहुत सारे एजुकेशन इज इन कंकरेंट। पूजा 40 क्या किसी की कोई आवाज़ आई? एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आइटम गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट आइटम भूल रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर। उसको पुलिस नहीं बोलते, उसको हम लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। ओके सर। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें जिसमें सिटीजन एसोसिएटेड हैं, ठीक है, जुडिशरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो कोर्ट्स का जितना भी काम होता है, तो हम एज अ सिटीज़न यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट का आपका जो इलेक्शन है, इन माई व्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट यहाँ पर एजुकेशन है, यहाँ पर कुछ वेट्स एंड स्केलिंग करके है, कुछ आइटम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा नहीं है बट मेजर आइटम्स इसमें। तो ये जो है, ये डोमेन है स्टेट्स का, ये डोमेन है सेंटर का। ठीक है, नाउ द इशू इज कॉन्स्टिट्यूशनली सेंटर को किस एरिया में लॉज बनाने चाहिए और स्कीम्स बनानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि अगर ये एरिया ठीक है, मान लो ये अलग अलग सिलेबस हैं। ठीक है, अलग अलग सिलेबस हैं, ये बीकॉम है और ये बीए प्रोग्राम है, तो आइडली बीए प्रोग्राम वालों को बीए प्रोग्राम का बनाना चाहिए और बीकॉम वालों को बीकॉम का बनाना चाहिए सिलेबस। ठीक है, और उसी को इन्फोर्स कराना चाहिए और इसी के बारे में डिटेल में बताना चाहिए। बट अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पे स्कीम्स बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट
इन एरियाज़ के ऊपर जो सेंटर की लिस्ट में जो स्कीम्स हैं उस पर जब स्कीम बनाती है तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में पैसा कौन देगा गाइस? सिर्फ सेंटर देगा क्योंकि सेंटर की स्कीम है। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जन धन योजना फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम है, तो वो इसके ऊपर आप नाप करो। ठीक है, रेलवेज की कोई स्कीम आती है तो वो इनकी अपने आप हैंडल करो। सो जितनी भी स्कीम्स होंगी जो इस एरिया में होंगी, सेंट्रल उसमें होंगी, वो सारी इम्प्लीमेंट सेंटर का काम है। वो सारा उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट से कोई काम मतलब नहीं है। ठीक है, देन what happens next is that अब सेंटर क्या करता है, एक तरीके का फ्रॉड करता है। और ये फ्रॉड जो है, मैं बहुत टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ जो सेंटर स्टेट कमीशंस में भी डिस्कस किया हुआ है। देयर इज, जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगे आगे जाके एज एन ऑप्शनल, और इवन इन GS you would have to see ARC reports, Administrative Commission Reforms Commission report. So there is this second ARC and also 2007 and also Center State Commission reports. पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे, उन्होंने, आप लोगों ने पढ़ा है सेंटर स्टेट रिलेशंस? गाइस पढ़ा अभी तक सेंटर स्टेट रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस? अच्छा, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में देयर विल बी टू मेजर कमीशंस दैट यू विल स्टडी। एक सकारिया कमीशन, एक करोगे सकारिया विच इज 1988, एंड द सेकंड इज गाइस जस्ट पुंची कमीशन। यस, पुंची कमीशन 2000 आई थिंक 2008 2010 के अराउंड कुछ होगी, 2010 के अराउंड हुआ। ठीक है, सो दिस इज द वन दैट यू वुड नीड टू फोकस ऑन इवन फॉर योर सिविल्स प्रेप। ठीक है, एंड द सेकंड ARC एज वेल। ठीक है, सेकंड ARC इज अराउंड 4000 पेजेस। ठीक है, एंड पुंची कमीशन भी छोटी नहीं है। ठीक है, तो अगेन व्हाई आई नो दिस इज बिकॉज पहले UPSC में 2 ऑप्शनल होते थे। अगर किसी को याद है 2 ऑप्शनल होते थे? हाँ, तो 13 और 11। हाँ, तो मेरी एक ये मिसफॉर्चून रहा है कि मेरे पास इकोनॉमिक्स के साथ हर बार नया ऑप्शनल चूज करता था। मैं लाइफ को मैंने बहुत चैलेंज करता था। ठीक है, कि नहीं यार, एक बार पढ़ लिया मज़ा नहीं आ रहा, नया बार पढ़ो। तो 2010 में आई हैड इको एंड ज्योग्राफी, तो इसलिए मुझे इको भी आती है और ज्योग्राफी भी बाई चांस आती है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शनल था, बट ज्योग्राफी में मेरे मार्क्स नहीं आए, तो मैंने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। तो 2011 लिया। 2011 मैंने कहा यार चलो नए तरीके से मेंस लिखेंगे, तो आई टुक इको एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना पड़ गया सब कुछ। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार्क्स नहीं आए। फिर 2012 में मैंने कहा कि अच्छा बॉस नया कुछ उठाते हैं, तो आई टुक इकोनॉमिक्स एंड आई टुक फिलॉसफी। मैंने कहा चलो फिलॉसफी पढ़ते हैं। और तो उसका जब फिलॉसफी पढ़ने लगा तो 2012 में मैंने देना नहीं था, मैंने 13 में देना था, बिकॉज 12 में आई वॉज वर्किंग विद इलाहाबाद बैंक। तो 13 में देना था और जनवरी में आया कि अच्छा ऑप्शनली एक हो गया है, तो मेरा ये बिल्कुल वेस्ट हो गया। फिर मैंने इकोनॉमिक्स किया, और फिर जब मेरा सिलेक्शन होता 2013 में कि आई थॉट कि अच्छा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दैट वाज द ईयर दैट आई ब्लैंक्ड आउट इन माय वन ऑफ माय पेपर्स, पूरा ब्लैंक आउट। ठीक है, तो वो ख़त्म हो गया। एंड इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स इफ़ यू फेल इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, अगर आपके हिंदी और इंग्लिश में अगर आप पेपर्स में, दीज आर कंपल्सरी पेपर्स, अगर आप फेल हो जाओ, so none of your papers will be checked. So in one of the attempts I failed in Hindi. So another attempt where मेरे अच्छे papers हुए, I failed in Hindi, my papers were not checked. So I have all different combinations of how not to get selected in UPSC. I can write a book on that. कि my chronicles of not getting selected. Every time clearing prelims, but कुछ ना कुछ मेंस में कुछ करना। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं लोगों को अच्छा गाइड करता हूँ कि भैया ये मेरी वाली एंटरटेनिंग लाइफ मत जीना। ठीक है, सो खैर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस थिंग कि सकारिया कमीशन। ये सकारिया कमीशन रिपोर्ट जो है, ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कमीशन रिपोर्ट, लेंदी बट इंटरेस्टिंग। ये बेसिकली कहते हैं और इसी के अंदर मेंशन है कि बॉस ये जो सेंटर है ये एक तरीके का फ्रॉड कर रहा है। अब वो फ्रॉड क्या कर रहा है, वो स्टेट लिस्ट के ऊपर स्कीम्स बना रहा है।
और उसके बाद स्टेट्स को बोल रहा है कि बॉस आप भी पैसा दो क्योंकि आपकी आपकी एरिया की स्कीम है। दी स्कीम्स जो स्टेट लिस्ट पे बन रही हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, CSS। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब कि सेंटर इसमें पैसा दे रहा है कुछ, बट ये स्कीम्स किस पे हैं? ये स्कीम्स स्टेट लिस्ट पे बनी हुई हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज NREGA। NREGA हैज़ टू रिलेट विद रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो डायरेक्टली अंडर स्टेट लिस्ट है, तो उसको सेंटर कैसे पहले बना रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी 3 डिवीजन हो जाते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आप क्या करते हो, तो एक आपका हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। इन सेंट्रल सेक्टर ये जो स्कीम्स होंगी ये यूनियन लिस्ट पे बनी होंगी, एंड यूनियन लिस्ट से ये जो सारी स्कीम्स हैं इसमें 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होगी। जो दूसरी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दीज आर स्कीम्स ऑन द स्टेट लिस्ट बट इम्प्लीमेंटेड बाय, conceived by, basically conceived by, no not 100% funded, hold on Ritika, ठीक है, implemented और implemented नहीं but conceived by union government। ठीक है, अब इसमें 3 डिविजन्स हो जाते हैं स्कीम के। वन इज कॉल्ड कोर ऑफ कोर, द अदर इज कॉल्ड कोर स्कीम्स, थर्ड इज कॉल्ड ऑप्शनल स्कीम्स। इस बार मैंने ऑप्शनल स्कीम्स का कुछ देखा नहीं बजट के डॉक्यूमेंट में। कोर ऑफ कोर स्कीम्स वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, यहाँ पर जो फंडिंग होती है वो 75:25 होती है, 75 यूनियन और 25 स्टेट्स। जो कोर स्कीम्स होती हैं उसमें 60:40 होती है, 60 यूनियन एंड 40 स्टेट्स, एंड जो ऑप्शनल स्कीम्स होती है उसमें 50-50 होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्कीम का डिज़ाइन, स्कीम कैसे होगी वो सारी चीज़ें सेंटर बता रहा है। स्टेट लिस्ट की स्कीम है और स्टेट को ही कह रहा है कि बॉस 25% पैसा आप दोगे या 40% पैसा और आप दोगे उस स्कीम का। तो स्टेट की ऑटोनॉमी को, स्टेट की अल्टीमेटली दिस इज वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल, तो स्टेट की जो ऑटोनॉमी है वो वायलेट हो रही है, जो इंडिपेंडेंस है वो वायलेट हो रही है। इसीलिए जो सेंटर स्टेट कमीशन रिपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल दी सकारिया कमीशन रिपोर्ट, ये कहते हैं कि बॉस ये तो पूरा फ्रॉड कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो जो आपकी, जब आप एक्सपेंडिचर्स पे जाओगे, ठीक है, स्टेट्स कैन नॉट रिफ्यूज़, क्योंकि यहाँ पर पैसा जो है उसको 75% पैसा जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे ही रही है। ठीक है, इसलिए स्टेट्स यूजुअली रिफ्यूज़ नहीं करती, बट कई स्टेट्स मना कर देते हैं कि हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे कई स्कीम्स तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली ने एक हेल्थ की कोई स्कीम थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लास्ट ईयर आई थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं करी, और सेम तृणमूल कांग्रेस ने भी इम्प्लीमेंट नहीं करी थी। ठीक है, वो फिर वो स्टेट की हो गई शालिनी। अगर कोई स्टेट लिस्ट की स्कीम है, स्टेट की खुद की स्कीम है, तो वो 100% वो स्टेट ही करेगी। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट कोई एक स्कीम रन कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली का एग्जांपल, जैसे दिल्ली में आपने कहा कि अगर आप 200 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो हम आपको आपका जो चार्जेस है वो 0 कर देंगे। ठीक है, या बहुत सस्ते रेट पे कर देंगे। तो वो तो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है, 100% पैसा दिल्ली गवर्नमेंट देगी। तो अपने डोमेन में अगर आप स्कीम बना रहे हो, बट ये देखो ना, आपके पास सोचो आपके पास 100 रुपये हैं, स्टेट के पास वैसे ही पैसा कम होता है ना, तो स्टेट्स के पास 100 रुपये हैं, उसमें से आपने कुछ पैसा यहाँ से ले लिया कुछ स्कीम से, कुछ पैसा यहाँ से ले लिया उससे, तो जो स्टेट्स अपनी खुद की स्कीम रन करेगा उसके लिए पैसा ही नहीं बच पाता। तो इसीलिए सेंटर का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है यहाँ पर इन स्कीम्स में। ठीक है, और सेंटर कहता है मैं और भी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करूंगा, इसलिए स्टेट की ऑटोनॉमी और स्टेट का जो पैसा वो कम रहेगा। यस सेमी। सर अगर सेंटर इज पेइंग द मैक्सिमम ऑफ द मनी, तो जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इन स्कीम्स में ज़्यादा हो जाती है। ऑफ कोर्स ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट उसकी ज़्यादा, ओवरऑल डिज़ाइन तो वही कर रहे हैं ना फिर। यस, द स्कीम वाज आयुष्मान भारत ने इम्प्लीमेंट किया, ना वेस्ट बंगाल ने ना दिल्ली। यस सेमी। इसकी वजह से स्टेट की ऑटोनॉमी इन्फ्लुएंस हो जाती है। हाँ ऑफ कोर्स, इसकी वजह से भी, और पैसा भी तो जा रहा है। अरे आपके पास पैसे कम पड़े हुए हैं,
तो और आप अपनी स्कीम रन करने के बजाय सेंटर की स्कीमें रन करे जा रहे हो, तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो रहा है कि वो कहेगी कि बॉस मैंने ये स्कीम रन करी, देखो कितना फ़ायदा हुआ लोगों को। बट जो स्टेट अपनी खुद की स्कीम्स रन करना चाहता है उसके लिए पैसा ही नहीं बचा ना। आई एक्सप्लेन इट रितिका। Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, the thing is the answer to Shalini's question is, शालिनी ये पूछ रही है कि is there any scheme in which the state makes 100% of funding? तो अगर स्टेट अपने लिस्ट पे अपने वाली लिस्ट पे कोई स्कीम बनाता है, ठीक है, तो उसका पैसा तो वो स्टेट ही देगी ना। फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि मैं लोगों को या हाँ, जैसे उसने कहा कि मैं अगर कोई भी बिजली का बिल होगा जिसका 200 यूनिट से कम होगा तो उसके लिए हम फ्री बिजली कर रहे हैं। तो वो किसकी स्कीम है? वो केजरीवाल की स्कीम है, आम आदमी पार्टी की स्कीम है। तो अगर आम आदमी पार्टी की स्कीम है और दिल्ली में इंप्लीमेंट हो रही है तो उसका पैसा भी आम आदमी पार्टी देगी, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट देगी। वो क्यों देगा? सेंटर क्यों देगा उसका पैसा? एंड इट लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। सो अब ये जो द रीज़न दैट आई टोल्ड यू अबाउट these थिंग्स इज बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो इन फाइनेंस कमीशन, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट फाइनेंस कमीशन के अंदर भी आता है। एंड इट्स अ वेरी टेक्निकल टॉपिक गाइस। अगर वो फाइनेंस कमीशन वाला पोर्शन ठीक से ना पढ़ा जाए, इट कैन बी अ वेरी बोरिंग टॉपिक, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड पूरा मैकेनिज्म। और यही मैंने इस बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी आपके सिलेबस में। कुछ चेंजेस मैंने प्रपोज किए थे जिसमें आपको पूरा मैकेनिज्म पता चले कि सेंटर से स्टेट्स पैसा कैसे आता, ठीक है। मोना, मेट्रो जो है आई थिंक, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फेजेस ऑफ मेट्रो जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट सेंटर, इट्स नॉट जस्ट स्टेट। आप पर्टिकुलर मेट्रो का कोई फेज देखोगे तो उसमें दिख जाएगा कि सेंटर का इतना पार्टिसिपेशन है, स्टेट का इतना पार्टिसिपेशन है, ठीक है, और उस हिसाब से ही पैसे हैं उसमें। एंड स्पेशली दिल्ली मेट्रो का ऐसे ही। यस शालिनी, द गवर्नमेंट डज प्रोवाइड। अगेन उसके लिए फिर हम फाइनेंस कमीशन में पहुंच जाएंगे कि अच्छा अगर सेंटर के पास, व्हाट शालिनी इज आस्किंग इज कि सर व्हाट हैपन्स अगर सेंटर के पास, स्टेट्स के पास पैसे ही नहीं है स्कीम इंप्लीमेंट करने के। दैट मीन्स व्हाट यू आर सेइंग इज दैट अ पर्टिकुलर स्टेट इज गोइंग टू रन अ रेवेन्यू डेफिसिट, राइट शालिनी? ये समझ में आया? रेवेन्यू डेफिसिट रन कर रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इतने, उसके पास एक्सपेंडिचर है बट उसके पास इतनी अर्निंग नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि वो स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट होगा? पहली बात तो ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, वो स्टेट के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो फाइनेंस कमीशन एज अ बॉडी क्या करेगी? फाइनेंस कमीशन एज अ बॉडी देखेगी कि अच्छा बॉस हर स्टेट का कितना रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, और उस हिसाब से सेंटर को स्टेट्स, उस हिसाब से फाइनेंस कमीशन सेंटर को बोलता है हर एक स्टेट को अलग अलग पैसा एलोकेट करने के लिए फॉर इट्स रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट के लिए अलग से ग्रांट दिया जाता है अगर किसी स्टेट का पैसा, अगर हम देख रहे हो कि कम है एज कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। बट दैट एंटायर कंसेप्ट comes into play when we go into finance commission, ठीक है। चलो, and that's another very interesting topic, another technical topic, very poorly taught। अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री देखो, very poorly taught, ठीक है। although आजकल ये 2-3 वो खुल गए हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं और सेम वर्ड टू वर्ड सेम चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। बट मैं भी थोड़ा चालाक हूँ, तो मैंने एक बार क्या किया, दिस कपल ऑफ गाइज हु एक्चुअली कॉपी माई वीडियो ऑन वर्ड टू वर्ड, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, मैंने टेस्ट करने के लिए जानबूझ के एक दिन क्लास में कुछ गलत फिगर्स बोल दी। मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं क्या, और उस बंदे ने भी, और नॉट जस्ट बंदा, दोनों इंस्टीट्यूट्स ने अपने वीडियो में दोनों गलत फिगर्स बोली। जीडीपी की कुछ फिगर्स थी, ठीक है, एंड आई न्यू कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, कि कितना है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा क्या चल रहा है तुम्हारी इंडस्ट्री में। तो खैर ठीक है, जहाँ से भी लोगों को फ़ायदा हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। चलो, यस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस आई थिंक शुड कम अंडर द सेंटर, आई एम नॉट श्योर सौजन्य, मतलब बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सेंट यू अ डॉक्यूमेंट बजट एट अ ग्लांस। उसमें जो लास्ट के पेजेस है ना, उसमें आपको इंडिया की सारी स्कीम्स मिल जाएंगी जितनी भी रन A to Z सारी स्कीम्स, और उसमें आपका मेंशन्ड है कि कौन सी स्कीम में कितना पैसा गया और किस तरीके की स्कीम है। नाउ द इशू इज कि अब हम ये सब क्यों देख रहे थे, क्योंकि अब ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर भी करेगा, दीज आर कॉल्ड
सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर पैसा, एंड दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर पैसा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सो ट्रांसफर टू स्टेट्स क्या है? अब ये ट्रांसफर टू स्टेट्स क्या है? ये वही चीज़ है जो मैंने आपको भी बता रहा था कि फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंटर को बता सकता है, वो फाइनेंस कमीशन सेंटर को बता सकता है कि बॉस इन सारे स्टेट्स के अंदर जो है पैसा चाहिए, क्योंकि इन सारे स्टेट्स में रेवेन्यू डेफिसिट हो रहे हैं। तो ये जो बताएगा ट्रांसफ़र टू स्टेट्स, ये फाइनेंस कमीशन बता सकता है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस कमीशन सेंटर खुद भी कर सकता है, ओन असेसमेंट के बेसिस पे भी कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। तो कुछ डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हो सकते हैं और कुछ आपके जो फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट्स बोलेगा वो करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए वो हो सकता है। And one of the types of grants which the finance commission asks center to give it to the states is called grants in aid, ठीक है। एक होता है grants, GIA, grants in aid. This is under article 275 of the constitution, ठीक है। अब ये बेसिकली सेंटर जो है पैसा, ठीक है, ये जो पैसा ट्रांसफर किया गया है ये मेजरली किया गया होता है रेवेन्यू डेफिसिट के लिए, स्टेट्स के रेवेन्यू डेफिसिट के लिए ट्रांसफर किया जाता है कि स्टेट्स जो शालिनी का क्वेश्चन था कि स्टेट्स का पैसा नहीं है और उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए ये यहाँ से पैसा है। बट सेंटर जो है वो स्टेट्स को इसलिए भी पैसा देता है कि कोई कैपिटल क्रिएशन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मेट्रोज़ की बात करी, तो मेट्रोज़ की क्रिएशन के लिए सेंटर भी पैसा लगा रहा है और स्टेट्स भी पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। कोई कंबाइंड प्रोजेक्ट्स आ गए, पावर का कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई और मेजर प्रोजेक्ट आ गया जिसके अंदर सेंटर भी कुछ फंडिंग दे रहा है। तो अगर सेंटर जो है ग्रांट दे रहा है स्टेट को, बट वो जो ग्रांट दिया गया है स्टेट को वो रेवेन्यू पर्पस के लिए नहीं है, वो किसी कैपिटल क्रिएशन के लिए है। दैट मीन्स वो स्टेट की लिस्ट में कैपिटल एसेट क्रिएट करेगा। ब्रिज हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, मेट्रो हो गई, एक ये सारी कैपिटल एसेट्स हैं। तो सेंटर से स्टेट्स तक पैसा गया है, बट दैट इज फॉर क्रिएशन ऑफ अ कैपिटल एसेट, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज ग्रांट्स इन एड, ठीक है। अंडर आर्टिकल 275 ये एक तरीके का ग्रांट दिया गया फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। बट ग्रांट कैन ऑल्सो बी गिवन फॉर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, इनको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। Also, so this will come under capital expenditure for center. No, this will come under capital expenditure of the states. स्टेट बना रहा होगा ना इसको, तो नहीं ग्रांट सेंटर तो ग्रांट के लिए तो अब ये क्यों है, अब ये वन टाइम नहीं है। अगर शालिनी इस क्वेश्चन इज कि सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज टेक्निकली जब आप ये ग्रांट दे रहे हो तो ग्रांट जो होता है एक तो होता है कई सालों तक चलता रहता है ग्रांट, कि अच्छा अब आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला गया ग्रांट का, फिर सेकंड इंस्टॉल, क्योंकि जो कैपिटल एसेट है ये कई सालों में जाके बनेगा, ठीक है। मेट्रो जो है 6 सालों में जाके बनेगी या 7 सालों में जाके बनेगी, बट आपको ये पैसा स्टेट्स को ट्रांसफर करना है। आप खुद नहीं बना रहे हो जाके मेट्रो, या खुद जाके वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस स्टेट्स को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो। और एंड एवरी ईयर यू हैव टू प्रोवाइड दैट मनी फॉर क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट और दोज पर्टिकुलर एसेट्स। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ रेकरिंग एक्सपेंडिचर from the side of the government, ठीक है। बट योर क्वेश्चन इज राइट, योर क्वेश्चन इज कि सर अल्टीमेटली इससे तो एसेट बन रहा है, तो हम इसको रेवेन्यू साइड में क्यों ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन राइट शालिनी? Yes, sir. तो इसीलिए हम जब हम बात करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पूरा एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अब ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। इस रेवेन्यू डेफिसिट से हम माइनस कर देते हैं ये ग्रांट्स इन एड, इसमें से ये आइटम माइनस कर देते हैं। हम कहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो कंट्री के लिए एसेट बन रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये प्रणब मुखर्जी ने टर्म इंट्रोड्यूस किया था 2010 में। नाउ इट्स नो लॉन्गर एक्चुअली यूज्ड, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता इस टर्म को, ठीक है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। सर स्टेट्स अपने बजट में एक्सपेंडिचर नहीं करते,
तनिष्का स्टेट्स भी एक्सपेंडिचर, तनिष्का को क्वेश्चन है सर स्टेट्स अपने बजट से एक्सपेंडिचर नहीं करते क्या? ऑफ कोर्स स्टेट्स भी करते हैं, बट स्टेट्स की हालत हमेशा टाइट रहती है, ठीक है, हमेशा स्टेट्स की हालत टाइट रहती है, इसलिए उनको सेंटर से पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे स्टेट्स का अभी भी किसी स्टेट का इतनी ऑटोनॉमी नहीं है जो आराम से अपने आप कर ले। दिल्ली अगर स्टेट बन गया तो उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के पास खूब पैसा होगा नहीं अगर जब स्टेट बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो ये है हमारा इफेक्टिव, आई कम टू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगेन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट जिनको नहीं समझ में आया। बट ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड है जहाँ पर आपने रेकरिंग एक्सपेंडिचर किया, उसमें मेजर आइटम आपके इंटरेस्ट है, फिर सब्सिडीज़ हैं, आपकी नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, you have your centrally sponsored schemes, you have your central sector schemes, then you have your transfers to states which are your revenue deficit grants to states which are also mentioned, which are also highlighted by the finance commission, and then you have grants to states for the creation of capital assets which is in lieu for creating capital assets in the states. ये आपके मेजर हेड्स हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है गाइस? लेट्स मूव ऑन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो आप ऐसे क्लासीफाई कर लो ऊपर वाला, या तो आप ऊपर वाले तरीके से क्लासीफाई कर लो इसको, या फिर आप इसको नीचे तरीके से कर लो। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। नाउ सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेंटर ने जो एक्सपेंडिचर किया इन जनरल सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, फॉर एग्जांपल सेंटर जो है रोड्स बना रहा है, ठीक है, हाईवेज बना रहा है। श्वेता, पहली बात तो ग्रांट कभी रीपे नहीं किया जाता, लोन रीपे किया जाता है। ग्रांट का मतलब यही होता है कि आपको रीपे नहीं करना, हाँ, तो वो नलीफाई वापस पे करना ही नहीं होता उनको, ठीक है। ग्रांट का मतलब यही होता है। फॉर एग्जांपल जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र जो है वो ग्रांट ही है, ये जो ट्रांसफ़र है ग्रांट ही है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपको पॉकेट मनी मिलती है वो आपको लोन नहीं मिल रहा, वो आपको ग्रांट मिल रहा है, आपको वापस नहीं करना, लोन आपको वापस करना होता है इंटरेस्ट के साथ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अच्छा सेंटर जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो सोशल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल सेंटर हॉस्पिटल खोलता है, जैसे सेंटर ने फॉर एग्जांपल एम्स खोले बहुत सारे, वो सेंटर की अपने अंदर से अपना स्कीम निकाली एम्स खोलने की, और वो सारा पैसा सेंटर ही दे रहा है, ठीक है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट है वो। फॉर एग्जांपल सेंटर रोड्स बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर सेंटर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं जो सेंटर के होंगे, चाहे वो जनरल लिस्ट में हो, चाहे वो सोशल लिस्ट में हो, इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, ठीक है, वो सारे के सारे सेंटर का एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट कैपिटल उसमें कुछ एसेट क्रिएशन होना चाहिए। डू रिमेंबर कि दिस इज वन टाइम इन नेचर, और कुछ कैपिटल एसेट भी एसोसिएटेड होना चाहिए। श्रेया, दी डिफरेंस बिटवीन इज ट्रांसफर्स टू स्टेट्स, जब मैं यहाँ ट्रांसफर्स टू स्टेट्स बता रहा हूँ तो मैं उसका मेरा बेसिक आइडेंटिफिकेशन, उसका सेपरेशन जो वाला पॉइंट है वो है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो स्टेट्स को हो रहा है उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, ये पैसा रेवेन्यू डेफिसिट के लिए, ये पैसा एसेट क्रिएशन के लिए, उनके लिए, ये डिफरेंस है दोनों में। देन फिर उसके अलावा द अदर मेजर आइटम इज लोन एंड एडवांसेस टू स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो हमारी गवर्नमेंट भी बाकी सारी गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है, फॉरेन गवर्नमेंट्स को लोन देती है, छोटे छोटे देशों को, फॉर एग्जांपल मालदीव्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये म्यांमार, भूटान, इन सारे कंट्रीज़ को हम लोन देते हैं। तो वो जो लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दिए या स्टेट्स को दिए, वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, वन टाइम पैसा है। इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसकी वजह से हम इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं और प्रिंसिपल भी हमें वापस मिलता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, द अदर वे टू लुक एट कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन जनरल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी कि अच्छा आपने बजट से कितना पैसा दिया, ठीक है, ये तो हो गया कि ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से का मतलब क्या होगा। सपोज मैंने 100 रुपये खर्च करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो अब वो 100 रुपये कहाँ से आ रहे हैं, ये वाला है कि किस किस चीज़ पे किया। ये जो आइटम्स हैं ये आपने बताया आइटम वाइज, और ये जो तरीका है क्लासिफिकेशन का कि आपने 100 रुपये खर्च किए, तो ये हम बता रहे हैं कि ये 100 रुपये खर्च करने के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है। तो कुछ पैसा बजट से आ रहा है, फॉर एग्जांपल 50 रुपये हमारे बजट से हमने आइडेंटिफाई किए हैं,
और कुछ पैसा जो है वो रेलवेज पैसा दे रहा है, कुछ पैसे अदर मिनिस्ट्रीज दे रही हैं, ठीक है। तो बाकी सारा पैसा ये 50 रुपये जो है वो बाकी बाहर से आ रहा है। व्हाट इज दिस बाहर से? दिस इज IEBR, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो इंडिया के अंदर ये बाहर से मतलब इंडिया के बाहर से मतलब नहीं है, ये मतलब है कि इंडिया की जो बाकी सारी कंपनीज हैं, ठीक है, बाकी सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी होगी गेल, सेल, ये MTNL BSNL बोल रहा था मैं, देन टेक द केस ऑफ ONGC, ठीक है। तो ये जो जितने भी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, महारत्नास, मिनी रत्नास, नवरत्नास, तो जस्ट अ सेकंड गाइस, माय बैड, हाँ, सो ये जितनी कंपनीज हैं जब ये प्रॉफिट कमाती हैं तो इनको हम बोलते हैं कि बॉस आप डिविडेंड तो दोगे ही, बट आप कुछ पैसा कैपिटल क्रिएशन के लिए भी, कंट्री की कैपिटल क्रिएशन के लिए भी दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि बॉस हमें ब्रिजेस बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी है, तो हम कहते हैं कि अच्छा 50 रुपये तो हम बजट से निकाल लेंगे अपने, बट 50 रुपये जो बाकी 50 रुपये हैं वो हम कहाँ से निकालेंगे कि रेलवेज कुछ पैसा दे दे और कुछ अदर मिनिस्ट्रीज़ और या फिर अदर जो हमारे ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो प्रॉफिट कमा रही हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली अल्टीमेटली जो पैसा स्पेंड, जो बजट से जो हम पैसा स्पेंड करते हैं उसके दो ही सोर्सेज हो सकते हैं, या तो कोई पैसा आ रहा है, कोई आपने स्पेंड किया है पैसा, तो या तो उसका पैसा बजट से आ रहा होगा, अगर वो बजट से पैसा आ रहा होगा तो उसको हम GBS बोलते हैं, और अगर वो पैसा आ रहा होगा क्या कहते हैं, या तो बजट से आ रहा होगा तो GBS, या फिर वो IEBR से आ रहा होगा, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये बेसिकली आप मान सकते हो कि PSUs जो है प्रॉफिट कमा के आपको पैसा दे रही हैं स्कीम्स रन करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ नो, बट अल्टीमेटली श्वेता दिस इज द मनी विच इज बीइंग स्पेंट। तो हम एक तरीके से इस तरीके से हम दिखा रहे हैं अपने अकाउंटिंग में, हम जब मैं आपको बजट का फिगर्स दिखाऊंगा तो बजट की फिगर्स में तो मैं आपको यही दिखाऊंगा, बजट की फिगर्स में तो मैं आपको यही वाली टर्म्स दिखाऊंगा, बट इन जनरल बता रहा हूँ कि जब हम ओवरऑल स्पेंडिंग देखते हैं तो स्पेंडिंग को इस फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। होल्ड ऑन टू दैट क्वेश्चन, आई जस्ट गो थ्रू दी बजट एट अ ग्लांस, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से स्पेंडिंग हुई भी है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट कि ये रिसीट साइड पे आएगा, ठीक है, ये रिसीट साइड पे नहीं आएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड है, बट उसका एक्सपेंडिचर का वो पैसा आया कहाँ से, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा कहाँ से आया, बस वो दिखा रहे हैं। दिस इज जस्ट अ मेथड, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट, दिस ऑल इज जस्ट अ मेथड ऑफ रेजिंग मनी, आपको इससे कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ, अभी इस वाले पोर्शन को भूल जाओ, आई विल शो इट टू यू लेटर ऑन। यहाँ तक क्लियर गाइज, ऊपर वाले दो टर्म्स और ये पूरा क्लियर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम एक्सपेंडिचर इधर ऑन लोन्स और एडवांसेस, और सेंट्रल जो अपनी स्कीम्स के लिए करता है, ये दो मेजर आपके एक्सपेंडिचर। Sir, in the revenue expenditure, you said that when the center makes transfer to the state, and this is basically when there is a revenue deficit to the center, to the state. So, if the state does not have any revenue deficit, will they do not get any kind of transfer? हाँ, फिर नहीं होगा। और ये हाँ, ये जो है, और ये जो चीज़ है साक्षी, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन हर स्टेट के पास जाता है, ठीक है, और आई विल शो यू फाइनेंस कमीशन की आज वेबसाइट दिखाऊंगा आपको, और देखना वहाँ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, ठीक है। हर स्टेट जो है वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, उनके लिए पार्टी होस्ट करते हैं, उनके लिए अच्छा सा पूरा कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, और हर स्टेट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है फाइनेंस कमीशन को कि बॉस देखो यार, हमारी कैसी हालत हो रखी है, हमारे पास पैसा है नहीं और एक्सपेंडिचर हमारा खूब है। तो एवरी स्टेट वांट्स टू डू दैट, ठीक है। सारे स्टेट्स इस तरीके से पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। फिर सारे स्टेट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेंटर फाइनेंस कमीशन से देखता है कि अच्छा इस स्टेट को इतना होगा, इस स्टेट को इतना होगा, और फिर फाइनेंस कमीशन जो है फिर बताता है कि अच्छा बॉस नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इतना पैसा पर ईयर जो है वो ट्रांसफ़र होगा। अनदर क्वेश्चन दैट इज बीइंग आंसर्ड थ्रू योर क्वेश्चन इज, ये ट्रांसफर्स टू स्टेट जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि फाइनेंस कमीशन बताता है एवरी ईयर हाउ मच मनी विल बी गिवन टू स्टेट्स फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वो एक वन टाइम नहीं आता।
ओके, आई एक्सप्लेन सेंटर्स एक्सपेंडिचर गाइज. ये नीचे वाला भूल जाओ, नीचे वाला जब मैं आपको बजट एट अ ग्लांस दिखाऊंगा तब बताऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया. सेंटर्स एक्सपेंडिचर जो है, सेंट्रल एक्सपेंडिचर, वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कीम्स, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बना रहा है, ठीक है, रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या बॉर्डर या फिर फॉर एग्जांपल राफेल प्लेन्स खरीद रहा है, ठीक है. तो ये सारा क्या है? ये सारा सेंटर का एक्सपेंडिचर है, चाहे वो डिफेंस पे हो, चाहे वो सोशल एरिया में हो, चाहे वो पार्क बना रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी बना रहा है. तो ये सारे सेंटर का एक्सपेंडिचर कर रहा है सेंटर, और कुछ एसेट बना रहा है, और वो एक ही बार होगा ना, एसेट तो एक ही बार बनते हैं. तो अगर आपने वो वन टाइम काइंड ऑफ आइटम है और आपने उस पर पैसा खर्च किया है, तो वो सेंटर का एक्सपेंडिचर नहीं. लमसम पर एवरी ईयर दिया रहा है ना, रेकरिंग इन नेचर देखते हैं ना. हमें सैलरी जो है, फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी तो हर महीने मिल रही है, हर साल के हिसाब से मिल रही है ना साक्षी. तो अगर वो कोई भी चीज़ रेकरिंग इन नेचर हो जाएगी, ठीक है, लमसम हर स्टेट के लिए अलग अलग है पहली बात तो, और दूसरा वो हर साल करना है, और हर साल का अमाउंट भी थोड़ा डिफरेंट होगा. तो और वो अल्टीमेटली पैसा भी किस लिए जा रहा है? वो स्टेट के भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जा रहा है अल्टीमेटली. हाँ, तो वो तो सैलरी भी तो हर, सब्सिडी भी तो साल में एक ही बार गई, फिर तो वो तो हर आइटम के साथ ऐसा ही है. इंटरेस्ट पेमेंट भी तो साल में आपने एक ही बार किया, ओके ऑलराइट. ठीक है. वही तो इस तरीके से सारी आइटम एक ही बार हुआ. आप रेकरिंग इन नेचर देखते हो उसको, कि उसका एसेंस रेकरिंग इन नेचर है या नहीं है. तो ये रेकरिंग इन नेचर है, ठीक है. तो ये हमारा गाइज हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. एक बार रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है. ये हमारा रिसीट साइड था, रेवेन्यू रिसीट, और ये हमारा कैपिटल रिसीट टाइप था, ठीक है. नाउ लेट्स क्विकली गो ऑन टू डेफिसिट्स. अब हम डेफिसिट देखना चाहते हैं. These are a major source of headache for almost everyone in this thing. See me, yes, the center can make a scheme on that. Ayushman Bharat is a scheme in the health sector which is being implemented by the center. Your provision of vaccines. Vaccines किसका आइडली एरिया? हेल्थ किसके अंदर आता है? स्टेट्स के अंदर आता है. आपको वैक्सीन सस्ते रेट पे प्रोवाइड कौन कर रहा है? ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कौन कर रहा है? सेंटर. So then what is the use of keeping public health in state list? उसको concurrent में कर देना चाहिए. हाँ, बट अल्टीमेटली मेजर डोमेन तो उन्हीं का ही है, स्टेट्स का ही डोमेन है. तभी तो आपको दिखता है डिफरेंस. आप दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाओ और हरियाणा और यूपी की हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको फर्क दिख जाएगा. वाई डू यू थिंक दिल्ली गवर्नमेंट इज गेटिंग री इलेक्टेड विद सच अ ह्यूज पावर? कभी देखा है आपने कि कोई एक गवर्नमेंट आ रही है इंडिया में 63 स्टेट में 90% सीट्स के साथ, 63 सीट्स हैं इसके पास. इससे पहले 67 सीट्स थी. वो इसीलिए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है यहाँ पर, एंड इतना अच्छा किया है कि आसपास के स्टेट्स वाले भी दिल्ली में आके अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली इट इज़ द डोमेन ऑफ द स्टेट. सेंटर कितना देख लेगा ना? सेंटर के पास भी तो अपने रेवेन्यू चैलेंजेस है ना. सेंटर जो अपना वो खुद का एरिया देख रहा है वही कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है. तो इसीलिए फॉर अस फॉर एवरी दीज आर एरियाज व्हिच आर स्टेट स्पेसिफिक एरियाज. समझ में आया? So these areas come under the centrally sponsored scheme para. हाँ, मतलब अगर स्टेट की लिस्ट पे है बट सेंटर ने स्कीम बना दी तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. आयुष्मान भारत इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इट्स एक्चुअली एन इंश्योरेंस स्कीम. Okay. ठीक है, पढ़ना इन चीज़ों के बारे में. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दीज डेफिसिट्स. फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. ये 4 डेफिसिट्स देखेंगे. हमने सबसे पहले देखना है फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट की पहली डेफिनेशन क्या होती थी गाइस? बोरोइंग्स ऑफ द स्टेट. दूसरी डेफिनेशन क्या होती थी? Debt making capital receipt. Debt making capital receipts. डेट मेकिंग. ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, कैन यू सी ये वाला टर्म बोरोइंग्स 2021-22 का ही देख लेते हैं. 2021-22 का ही देख लेते हैं. 2021-22 का बोरोइंग्स कितना? इट इज, दिस इज ऑल इन crores. ठीक है, सो इट इज 15 लाख crores. दिख गए फिगर गाइस? 15 लाख crores.
Yes, sir. ठीक है. नाउ दिस फिगर अगर आप देखो और यहाँ पर देखो फिस्कल डेफिसिट, कैन यू सी दिस फिगर इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस. चाहे वो आप वो ये वाली फिगर ले लो, चाहे वो ये वाली फिगर ले लो, चाहे आप यहाँ से देख 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 लो, तो आपको दिख गया कि ये बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट. यहाँ से क्लियर हो गया गाइस ये चीज़. Yes, sir. और इसी को हम डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये तो नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स हैं. ये नॉन डेट है, ये डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स हैं. सेम नाम, इसी का दूसरा नाम बोरोइंग्स का दूसरा नाम ये होता है. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द थर्ड डेफिनेशन. अब मुझे इस फिगर पे पहुंचना है. इस फिगर पे मैं एक और तरीके से पहुंच सकता हूं, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो सकता है दुनिया में. वो क्या है? मैं कहता हूं बॉस, व्हाट इज माय टोटल एक्सपेंडिचर? माय टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज माय टोटल एक्सपेंडिचर. फिर मैं बोलता हूँ व्हाट इज माय रेवेन्यू रिसीट्स. तो बेसिकली मैं यहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ ना, इस पे पहुँचना चाह रहा हूँ. तो मैंने अपना टोटल एक्सपेंडिचर पहले निकाला, ठीक है. अल्टीमेटली मैं बोरोइंग्स का अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ. ध्यान रखना, पहले मैं देख रहा हूँ कि मेरे खर्चे कितने हैं. आई सॉ कि दिस इज माई टोटल एक्सपेंडिचर. देन आई सब्ट्रैक्टेड वट एवर आई एम अर्निंग. वट एम आई अर्निंग? आई एम अर्निंग रेवेन्यू रिसीट्स, this amount, and I am also earning non-debt making capital receipts. So if I use this particular formula, this technical way of writing it, then also the answer is equal to borrowings or debt making capital receipts. So I can write this formula as total expenditure minus revenue receipt plus non-debt making capital receipts, and I can further write this as revenue expenditure plus capital expenditure अगर करना चाहूँ तो. And see, this is what the formula also says. ये क्या बोल रहा है? देखो, ये बोल रहा है 9 minus 1 minus 5 minus 6. 9 क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर. और टोटल एक्सपेंडिचर किस चीज़ से बना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 और 13 से, ठीक है. और माइनस क्या कर रहे हैं? 9 से हम क्या माइनस कर रहे हैं? 1 माइनस कर रहे हैं, विच इज़ रेवेन्यू रिसीट. माइनस और क्या कर रहे हैं? 5 माइनस कर रहे हैं रिकवरी ऑफ लोन्स, और माइनस कर रहे हैं 6 विच इज़ रेवेन्यू अदर रिसीट्स. तो बेसिकली इन दोनों को मिला के मैं क्या कह सकता हूँ, दीज आर नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स. सो चाहे आप इस फॉर्मूला को आप इस तरीके से लिखो, चाहे आप इस तरीके से बोलो, या सबसे सिंपल तरीके से बोलो, बात फर्क कुछ नहीं पड़ता. अल्टीमेटली इट विल ऑल बॉइल डाउन टू बोरोइंग्स. समझ में आया फिस्कल डेफिसिट गाइस? सर, बजट एट अ ग्लांस में जो आपने बताया, आई गॉट द फॉर्मूला, बट बजट एट अ ग्लांस में जो बताया वो नहीं समझ में. अच्छा, बजट एट अ ग्लांस में समझ गया. बजट एट अ ग्लांस में फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? 9 minus 1 plus 5 plus 6, ये लिखा है ना, ठीक है. व्हाट इज दिस 1 plus 5? ये क्या है? ये आपका है नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट. ये क्या है? ये रेवेन्यू रिसीट्स है. और ये क्या है? ये टोटल एक्सपेंडिचर है. तो यही तो लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये रेवेन्यू रिसीट्स ये रही, माइनस ये ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट खोलोगे तो सारे माइनस में आ जाएंगे, ठीक है. माइनस 5 विच इज़ 5 इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट? कैपिटल रिसीट्स को इन लोगों ने डिवाइड नहीं करा हुआ यहाँ पर, बट यू नो कि कैपिटल रिसीट्स आर ऑफ 2 kinds, डेट मेकिंग एंड नॉन डेट मेकिंग. बोरोइंग जो होती है उसको डेट मेकिंग बोलते हैं, बोरोइंग के अलावा जो भी है वो नॉन डेट मेकिंग है. तो ये दोनों नॉन डेट. Fiscal deficit is total expenditure minus total receipt excluding borrowings. एग्जैक्टली. ये तीसरी डेफिनेशन बोल सकते हो, चौथी डेफिनेशन बोल सकते हो. एक ही तो चीज़ है. आप किसी चीज़ को कहीं से भी पकड़ लो ना. लेट मी पॉइंट इट आउट अगेन. हम बेसिकली क्या देखना चाह रहे हैं? व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट किसी भी, अगर मैं घर की बात बता रहा हूँ तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक घर जो है वो कितना बोरो करता है, और जो बोरो करता है वो उसी को हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है. जो भी मैंने लोन लिया वो फिस्कल डेफिसिट है. अब
अगर आप एक घर के हिसाब से देखो कि एक घर लोन कितने अमाउंट का लेगा, वो कैसे निकाला जाएगा? या तो आप उससे पूछ लो भैया तूने लास्ट ईयर कितना लोन लिया था, तो वो उसको कह दो कि भैया ये फिस्कल डेफिसिट है। ये तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। दिस इज द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन दैट आस्क अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट हाउ मच डिड यू बोरो फ्रॉम द मार्केट। once that government tells you that this is how much I borrowed from the market, that is the fiscal deficit. That's it. But if you want to make it more technical, what will you do? You'll ask the government, okay boss, let me know how much did you spend, या हाउसहोल्ड से पूछोगे कि आपने स्पेंड कितना एक्सपेंडिचर किया लास्ट ईयर। कहेगा कि चलो बॉस मैंने 100 रुपये स्पेंड किए। फिर उसने बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आपकी सैलरी कितनी थी, या जो भी आपकी अर्निंग्स थी, तो उसने कहा मेरी 50 रुपये अर्निंग्स थी। तो फिर आपने कहा कि अच्छा 100 रुपये आपका खर्चा था, आपकी 50 रुपये अर्निंग थी। फिर आपने उससे पूछा अच्छा आपने कोई चीज़ बेची थी क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा आपकी इनकम का है, तो उसने कहा कि अच्छा हाँ बॉस मैंने अपने आए कोई आइटम बेचा था 25 रुपये का। तो आपने कहा अच्छा चलो ये आपको नॉन डेट मेकिंग कोई रिसीट हुई है। तो जो बाकी 25 रुपये बचा, दैट इज द बोरोइंग दैट यू वुड हैव टू डू। सो वो 25 रुपये बोरोइंग है, या फिर आप सीधा बोल सकते थे कि 25 रुपीज़ की बोरोइंग है। ठीक है। सो अल्टीमेटली योर ऑब्जेक्टिव इज टू कम टू द पॉइंट दैट हाउ मच इज अ गवर्नमेंट बोरोइंग। द गवर्नमेंट इज बोरोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इट अर्न्स, ठीक है, व्हाट इज इट्स एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस व्हाट इज इट अर्निंग ऑन अ रेवेन्यू अकाउंट जो उसकी ईयरली इनकम है, माइनस व्हाट इट अर्न्स बाय सेलिंग इट्स एसेट्स, या फिर वन टाइम इनकम जो उसको हो रही है। दैट विल गिव यू द रिमाइंडर पोर्शन विच इज नथिंग बट डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स, जो उसको लोन लेना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द बोरोइंग्स ऑफ द yes, Tanishka, you can say that borrowings. So Tanishka is saying, sir, the fiscal deficit is the borrowing. So we can say that borrowings is taken to cover up the expenditure, which is exceeding income, which is not just exceeding income, which is also exceeding your revenue income as well as non-debt making income. ठीक है। एक और तरीका है तनिष्का इसको कवर करने का कि अपने एसेट्स बेच दो। तो बोरोइंग वो होगी जो आपकी इनकम, यू हैव टू क्वालिफाई कि मेरी वो इनकम क्या है, मेरी वो रेवेन्यू इनकम है एंड नॉन डेट मेकिंग इनकम है। समझ में आया एवरीवन? गाइस दिस इज, and the first question that you're going to get in your examination is on calculation of fiscal deficit, so you need to be very careful with this. Excuse me, sir. yes Shivangi, No question. Yes. If sir earning से ज़्यादा expenditure हो रहा है, तो वो fiscal deficit तो तब होगा ना जब हमें कुछ borrow करना पड़ेगा। अगर जितना exceed कर रहा है, उतना का हम अगर अपना asset हटा देते हैं, हाँ, तो उसमें तो कोई fiscal deficit की बात नहीं आएगी। हाँ, फिर कोई फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं आएगी। Yes, sir, got it. But Shivangi, you have brought another different dimension to it. ठीक है। एंड ये चीज़ मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ बेसिकली। FRBM, there's an act called, अगर सिविल्स करोगे तो उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा FRBM एक्ट। इट इज़ समथिंग लाइक, इट इज़ व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि बॉस मुझे फिस्कल डेफिसिट कम करना है, और ये भी सरकार भी खूब करती है कि यार फिस्कल डेफिसिट ना इन्वेस्टर्स को, बाहर के इन्वेस्टर्स को दिखता है कि यार गवर्नमेंट बहुत बोरो कर रही है और मार्केट में भी बोरोइंग हो रही है, तो उसका रिलेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ आ जाता है इंटरेस्ट रेट को लेके। आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटी, बट सपोज आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, तो व्हाट शिवांगी से सेइंग इज कि सर एसेट्स बेच दो। बट इजंट इट समथिंग लाइक दैट आप मर्सिडीज चला रहे हो, मतलब आप मर्सिडीज अपनी गाड़ी के लिए आप शॉफर रखना चाहते हो, और उस शॉफर को रखने के लिए यू आर विलिंग टू सेल the silverware of your house. ठीक है। तो basically in English it's a quote or it's an adage called that to afford a butler or to afford a chauffeur you have to sell your silverware. ठीक है, कि अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आप घर की चीज़ें बेच रहे हो so that आप बटलर या फिर आप एक शॉफर अफोर्ड कर पाओ। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू हैव कि जस्ट बिकॉज आपको फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो आप उठा के देश को बेच दो। ठीक है, देश के आपके एसेट्स बेच दो। ठीक है, इसीलिए इफ यू सी yesterday I sent an article on aspiring bureaucrats. I think today also I sent an article on aspiring bureaucrats. Read about that national monetization plan. ठीक है, जो नीति आयोग ने बनाया। इसमें हम एसेट्स नहीं बेच रहे हैं, हम इसमें एसेट्स का ऑपरेशनल राइट्स दे रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 7 to 10 years। एसेट्स सरकार के पास ही रहेंगे, बट उनको यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, उसके ऊपर काम करना, वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा टू दी प्राइवेट सेक्टर फॉर सम ईयर्स, 7 to 10 years तक। बट वो एसेट जो है अभी भी सरकार के पास ही रहेगा उस लीज के ख़त्म होने तक के बाद।
ठीक है. सो रीड अबाउट दैट कि ये एक नया तरीके का मैकेनिज्म लेके आ रही है सर. गाइस, क्लियर फिस्कल डेफिसिट? Yes. ग्रेट. Yes. The other thing is अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत क्लियर है गाइस. रेवेन्यू डेफिसिट में तो मुझे एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहिए. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला एक्सपेंडिचर 10, दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट. और उसके ये सब पार्ट्स हैं गाइस. ठीक है, ग्रांट्स, ये मैंने बताया था ना, देखो, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स. ये मान लो अगर ये 10 है तो इसको 11 की जगह इसको लिख सकते हो आप 10A, क्योंकि 10 का ही पोर्शन है. और इसको लिख सकते हो 10B. ये अलग नहीं है गाइस, ये इसी के अंदर के पोर्शन हैं. ठीक है, तो इसीलिए लिखा है ऑफ विच. ठीक है, तो अब 10 से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट में कोई प्रॉब्लम? Sojanya has a question. Sojanya has a question. Do you think that the companies will invest crores in money to improve it when they don't have the ownership of the asset? Depends on what kind of asset, what kind of money. तो वो कंपनी भी तो फोरकास्ट करेगी. वो कंपनी भी पागल नहीं होगी ना कि वो सोचेगी कि यार मैं इतना पैसा सरकार को दे दूँ, तो वो भी सोचेगी कि अच्छा मुझे उससे बेनिफिट क्या हो सकता है. सो एवरी कंपनी विल हैव टू टेक दैट कॉल कि इट्स समथिंग लाइक लीजिंग गाइस. जैसे फॉर एग्जांपल होटल जो है वो आप लीज पे करते हो. ठीक है, there's a very good friend of mine with whom even I am going to open a hotel in this thing Goa. ठीक है, it's called Madvic. अगर आप कभी जाओ, so there are three basically these are high end villas basically, not hotels. These are villas. ठीक है, Airbnb. Has anyone seen Airbnb app? Yes, sir. Airbnb. So there are 3 properties listed there गोवा के अंदर. ठीक है, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द प्रॉपर्टीज. सो ये जो है ये लीज पे हैं प्रॉपर्टी सारी की सारी. तो वी हैव अ लीज ऑफ 7 years. हमारे पास 7 years का लीज है. हमने वो प्रॉपर्टी उठा के बना दी है. ठीक है, अब बिल्कुल ख़राब प्रॉपर्टी थी. उसका आप इंस्टाग्राम पे देखना या फिर उस पर देखना, यू विल सी दैट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. ठीक है, बिल्कुल 5-star विला की तरफ बना दिया उसे. एंड नाउ व्हाट इज द केस इज, अब वो 7 साल के हमारे पास है. अब हम 7 साल से उससे जितना रेवेन्यू कमा सकते हैं कमाएंगे. ठीक है, 7 साल बाद वो वापस ओनर के पास चले जाएगी. 7 साल में तो कैपिटल डिप्रिसिएशन भी तो होगा उस चीज़ का जो हमने आज बनाया, वो 7 साल तक तो ना टिकेगा. पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एक रेवेन्यू अमाउंट था कि से 70,000-80,000 रुपीज़ रेंट है. सो वो हमारा रेंट है, उसके ऊपर जितनी भी इनकम है वो मेरी इनकम है. ठीक है, सिमिलरली सरकार ने कुछ रोड बनाई हुई है. जस्ट अ सेकेंड, प्रतिमा, आई एम इन अ क्लास राइट नाउ, आई विल गिव यू अ कॉल आफ्टर सम टाइम. सो सरकार ने फॉर एग्जांपल कुछ रोड बनाई हुई है जो यूज़ ठीक से नहीं हो रही है. लैंड जो है वो ठीक से यूज़ नहीं हो रही. हमने कहा कि भैया 7 साल तक आप इसको डेवलप करके अपने पास रख लो, जो काम करना है कर लो, हमें रेंट दे देना है इतना, और उसके बाद 7 साल बाद हमें वापस कर देना है ये चीज़. तो उसमें उनका भी फ़ायदा, उनको लैंड की कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही. नहीं तो ये अगर लैंड खरीदनी पड़ती है आज की डेट में, ये चीज़ जो है, ये जो लैंड मैडविक की जो लैंड है, ये हमें 60,000 रुपये महीना मिल रही है, 60,000 रुपीज़ पर मंथ. इसको मैं खरीदने जाऊँगा, द कॉस्ट इज़ 2.5 करोड़ रुपीज़. इफ़ आई डोंट हैव 2.5 करोड़ रुपीज़ इन माई पॉकेट, दिस इज एन बेटर ऑल्टरनेटिव दैट आई हैव. ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑप्शंस व्हाट यू चूज. ठीक है, सो do check out the properties guys, just in case you have. I think 7 years है. I don't think it's 4 years. I think 7 years है, 4 years नहीं. But project to project भी हो सकता है डिफर कर जाए. Yes guys, sorry. So this is revenue deficit. तो revenue deficit क्या होगा? आपका revenue expenditure minus revenue receipts. Now very simple basic concept. The important concept that I wanted to discuss was now effective revenue deficit. अब आपका रेवेन्यू डेफिसिट आपके पास आ गया. रेवेन्यू डेफिसिट आपके पास आ गया और रेवेन्यू डेफिसिट है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. ठीक है, अब आप कहते हो कि बॉस हमने जो ये जो रेवेन्यू अकाउंट में हमने जो पैसा दिया है स्टेट्स को, ये वाला पैसा जो दिया है, ये जो पैसा दिया है, ये तो अल्टीमेटली स्टेट्स की कैपिटल क्रिएशन के लिए है ना. स्टेट इससे कैपिटल एसेट बनाना है, तो कंट्री में तो कैपिटल एसेट बन रहा है. If that is the case, then this money इस रेवेन्यू डेफिसिट से हमें ये वाली आइटम माइनस कर देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्री के लिए एसेट बन रहा है. सो इफ यू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट से, इफ यू रिड्यूस these grants in aid to states for capital creation, you get
effective revenue deficit. And if you see 14 minus 12, you will get effective revenue deficit. Okay, यहाँ तक ये चार डेफिनेशन, ये तीन डेफिनेशंस क्लियर है गाइस? So can you explain it once again? So effective revenue deficit is nothing but your revenue deficit minus the grants in aid given to states for capital creation. So if you remember here, ये जो हमने किया था, हमने यहाँ पर क्या बात करी थी? We had seen this grants to states for creation of capital assets. So this grants to states for creation of capital assets ultimately उस state से capital asset बन रहा है. अगर कैपिटल एसेट बन रहा है तो आप उसको रेवेन्यू अकाउंट में क्यों डालोगे? ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी सेड इन 2010 वाज दैट बॉस हमें कंट्री का एज अ होल देखना चाहिए. कंट्री एज अ होल में कैपिटल एसेट बन रहा है बट मैं उसको रेवेन्यू अकाउंट में दिखा रहा हूँ. तो रेवेन्यू डेफिसिट में से अगला अमाउंट जो है ये मैं हटा दूंगा, तो वी विल गेट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कि एक्चुअली में रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ. ठीक है, पूर्णिमा समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. And the last issue that we have to see is primary deficit. Now what is primary deficit? Primary deficit is essentially कि आप एक पर्टिकुलर ईयर में कितना लोन ले रहे हो उस साल के लिए. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट एज. पहले तो डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. नाउ सपोज आपने जो लोन लिया, आपने फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बोरोइंग्स होती है ना, बोरोइंग्स. कई बार ऐसे भी तो होता है गाइस कि आप बोरो करते हो क्योंकि आपको पुराने इंटरेस्ट पे करने हैं. ऐसे भी तो बोरो करते हैं ना कई बार लोग, कि पुराना किसी इंटरेस्ट किसी एक दोस्त को चुकाने के लिए दूसरे दोस्त से पैसा लेते हैं ना कई बार लोग. दैट हैपेंस. Yes, sir. सो दैट इज बेसिकली आप बोरो कर रहे हो, फ्रेश बोरोइंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी का इंटरेस्ट चुकाने के लिए बोरो कर रहे हो. सो बोरोइंग्स कैन बी फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स विच आर प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्रीवियस ईयर्स की, और फ्रेश बोरोइंग्स. तो अब आप देखना चाहते हो कि बॉस मेरे इस साल के पाप कितने हैं, पुराने, ये तो पुराने पापों के लिए आप बोरो कर रहे हो. अब आप देखना चाह रहे हो कि बॉस इस साल के मेरे नए पाप कितने हैं. इफ बोरोइंग इज अ पाप, assuming that, although it's not a pap, so to say, but suppose if I say this, तो आप देखना चाहते हो कि बॉस मेरे इस साल की बोरोइंग्स कितनी हैं. तो आप क्या करोगे? आप फिस्कल डेफिसिट विच इज दिस फिस्कल डेफिसिट से ये इंटरेस्ट पेमेंट हटा दोगे, तो आपके पास आ जाएगी ये फ्रेश बोरोइंग्स कि इस साल के लिए आपने कितना बोरो किया. एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट. इसीलिए उसका नाम प्राइमरी है कि उसी साल का डेफिसिट जो है वो कितना है. ठीक है, क्लियर हुआ गाइस प्राइमरी डेफिसिट? एंड लेट मी शो इट टू यू हियर. Yes, sir. लेट मी शो इट. पुराने पाप के लिए पुराने पाप के लिए तो आपकी बोरोइंग्स है ही, वो तो आप प्राइमरी आप फ्रेश बोरोइंग हटाओगे तो आप पुराने पापों की आपकी हुआ है. इंटरेस्ट पेमेंट अपने आप ही पुराने पाप हैं आपके. इंटरेस्ट पेमेंट तो पुराने उन्हीं के लिए है ना, पुराने लोन्स के लिए है. तो इफ यू सी प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इज 16. इफ यू सी 16, यहाँ पर 16 क्या है? फिस्कल डेफिसिट, और माइनस 11 क्या था? इंटरेस्ट पेमेंट. तो 16 माइनस 11 इज प्राइमरी. तो ये आपके चारों डेफिसिट्स हैं. नाउ वन लास्ट थिंग बिफोर वी एंड द क्लास गाइस, क्योंकि हमने आज क्लास भी थोड़ा लेट शुरू किया था. We need to see where is your money coming from and where is this money going. So let's see where is this money coming from. This money is typically coming from a typical rupee in India's budget. So basically this is a typical rupee, 1 rupee. Where is this coming from? Major source जो है आपका पैसे का वो क्या है? Borrowings. ये गाइस कौन सा है? ये 2021-22 के बजट के ऊपर है, बजट एस्टिमेट्स के ऊपर है. हर साल के लिए अलग हो जाएगा. मेजर जो सोर्स, अगर आपके पास 1 रुपया आ रहा है तो दैट मीन्स आप रिसीट साइड में देख रहे हो. रिसीट साइड में अगर आपको 1 रुपया आया तो वो कैसे बना?
उसमें से 36 पैसे इज योर बोरोइंग्स. What will you call this as? Fiscal deficit. Fiscal deficit. So this is the fiscal deficit. But apart from that, these are your debt borrowings. ठीक है, you have non-debt borrowings. ये non-debt making capital receipts हैं. But major sources और पैसे के क्या हैं? Corporation tax, मैंने आपको बताया था ना, सब बहुत major portion corporation tax से आता है. Income tax, custom duties, union excise duties, GST. All of these are called as tax receipts. Tax receipts. ये सारी आपकी टैक्स रिसीट्स आ गई. फिर ये आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स आ गई, 6 पैसा, और 5 पैसा आपका आया इससे, और बाकी सारा बोरोइंग्स है. ये जस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया कि अच्छा बॉस इस तरीके से हमारा पैसा आता है गवर्नमेंट के पास. ये आपके पास एसेंस होना चाहिए. क्लियर गाइज? कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट in general, because a lot of you are going to prepare for the civils, you should have this idea in general. चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, you should have an idea about this. Excuse me, sir. Yes, Semi. Sir, for an efficient economy, ये जो borrowing और other liabilities का share है, ये कम होना चाहिए ना? आइडली कम होना चाहिए. ये इसलिए ज़्यादा भी आपको दिख रहा है क्योंकि हम कोविड टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं. दिस इज कंप्लीट, यस दिस इज पूजा, दिस इज कंप्लीट रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स. ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है ना, ये सारा मिला लोगे, ये यहाँ तक, ये आपका रेवेन्यू है. और रेवेन्यू के अंदर ये वाला पोर्शन जो है, ये आपका रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, याद है हमने टैक्स और नॉन टैक्स किया था, तो ये आपका टैक्स है, ये नॉन टैक्स है. और ये आपका कैपिटल रिसीट्स में ये नॉन डेट मेकिंग है, ये नॉन डेट मेकिंग और ये डेट मेकिंग है. तो ये पूरा है. देन लेट्स सी हमारा पैसा खर्च कहाँ होता है. नाउ इफ वी सी और एक्सपेंडिचर, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा इंटरेस्ट पेमेंट में. ठीक है, तो आपका एक मेजर पोर्शन इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाएगा जो आपके पुराने पाप अपने करे हुए हैं. ठीक है, फिर उसके बाद एक मेजर पोर्शन आपका जाएगा, देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, देखो, फिर पेंशंस, देन यू हैव फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, सब्सिडीज, डिफेंस. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा. बट कैन यू सी कि यहाँ पर आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कोई टर्म नहीं मिल रही. दिख रहा है आपको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली टर्म दिख नहीं रही, क्योंकि ये भी रेवेन्यू की है, ये भी रेवेन्यू की है, ऑलमोस्ट इसमें भी मेजर पोर्शन रेवेन्यू का ही है. ठीक है, ये तो पूरी ही रेवेन्यू है, ये भी पूरी रेवेन्यू है, ये भी पूरी रेवेन्यू है, ये भी पूरा रेवेन्यू है, ये भी पूरा रेवेन्यू है, तो सब कुछ तो रेवेन्यू है. इसीलिए हमारी ये हालत है, क्योंकि अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो इंडिया उसमें से 90 रुपीज़ जो है वो रेवेन्यू अकाउंट में खर्च करता है, और सिर्फ 10 रुपये जो है वो कैपिटल अकाउंट में खर्च करता है. तो वो अदर एक्सपेंडिचर में और थोड़ा बहुत डिफेंस में आ जाता है. बट मेजरली this entire thing is coming out of is all your revenue expenditure, मेजरली. बट अगर आपको कंट्री को डेवलप करना है, अगर आपको कंट्री को बढ़ाना है कि हाँ हम नया अच्छा एक फास्ट मूविंग इकोनॉमी फ्यूचर की बनाना चाहते हैं, तो हमें ये बढ़ाना पड़ेगा. आपकी कंट्री तब डेवलप होगी जब आपकी कंट्री के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. आपकी कंट्री तब डेवलप होगी जब आपकी कंट्री के पास अच्छे स्कूल्स और अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, जब अच्छा हेल्थ सिस्टम होगा. ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं. जब आप 100 रुपये में से 90 रुपये इन सारी चीज़ों पे खर्च कर दोगे जिनसे आपको वोट मिलते हैं, और सिर्फ 10 रुपये खर्च करोगे जिनसे कंट्री बढ़ सकता है, तो कंट्री ऐसी डेवलपिंग ही रह जाएगी. ठीक है, पिछले 50 से 70 सालों में किसी भी कंट्री ने जो भी डेवलप हुई है, कौन सी कंट्री डेवलप हुई है, जापान डेवलप हुआ है, चाइना डेवलप हुआ है, कोरिया डेवलप हुआ है. ठीक है, जो भी कंट्री, सिंगापुर डेवलप हुआ है, जो भी कंट्री डेवलप हुई है पिछले 50 से 70 सालों में, उन सब ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इन आइटम्स में. इंडिया पिछले 70 सालों से इन आइटम्स को इग्नोर करता हुआ आ रहा है, तभी हमारी ये हालत है. हम इसी पे फोकस करते रहते हैं. Yes, exactly. That is what we need, Pooja. And one final, can you please हाँ मैं वो उसको finish करूँगा, रुको. One final thing that we need to see is
deficit trends. Now why do you think guys, can you see, all of you see कि deficit एकदम से यहाँ पर revised estimate के अंदर, can you see revised estimate के अंदर of 2020-21 सारे deficit बढ़ गए और fiscal deficit जो है तो 9.5% of GDP हो गया, which is huge. यूजली हम कंटेन करने की कोशिश करते हैं इसको 3% ऑफ जीडीपी में, 3.5 गुना हो गया ऑलमोस्ट. ये क्यों हुआ गाइस? बिल्कुल बिकॉज ऑफ कोरोना. गो कोरोना गो. ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी एकदम से आपको दिखाई देगा, हम बजट का जब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आपकी रिसीट साइड एकदम से बैठ गई, स्पेशली आपकी टैक्स रिसीट्स, क्योंकि लोगों को इनकम ही नहीं हो रही थी. तो जब आपकी टैक्स रिसीट्स एकदम से गिर जाएंगे और आपके एक्सपेंडिचर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके बहुत सारे हो गए क्योंकि आपको पैंडेमिक मैनेजमेंट करना है. तो जब आपकी रिसीट्स गिर जाएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स आपकी गिर जाएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा, तो क्या होगा गाइस? क्या चीज़ बढ़ेगी सबसे पहले? रेवेन्यू डेफिसिट. कैन यू सी रेवेन्यू डेफिसिट आपका देखो 7.5% पे पहुंच गया. यस सर. तो रेवेन्यू डेफिसिट इज बेसिकली पुशिंग फिस्कल डेफिसिट अप. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इज कॉजिंग फिस्कल डेफिसिट टू गो अप, क्योंकि आपका रेवेन्यू अकाउंट में ही आपका प्रॉब्लम हो गई. और क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए सरकार को बोरो करना पड़ रहा है, एंड विच इज लीडिंग टू, और ये सारी फ्रेश बोरोइंग्स हैं, पुरानी बोरोइंग्स नहीं, आपको फ्रेश बोरोइंग्स करनी पड़ी है. इसीलिए आपको दिख रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट भी 6% पहुंच गया. Most of them are fresh borrowings. So this is how you see, and effective revenue deficit हम ज़्यादा कंसर्न नहीं रखते, अब इतना ज़्यादा यूजेज में नहीं आता effective revenue deficit. ठीक है, दो एज आई टोल्ड यू 2010 में आया था ये टर्म, उससे पहले नहीं था. बट effective revenue deficit is probably useless now. बट फ्रेश बोरोइंग्स जो हैं, ये जो बोरोइंग्स हैं फ्रेश हुई हैं, इसलिए आपका प्राइमरी डेफिसिट. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटायर chronology and the entire issues of this. Yes, Tanmay, I'll do that again. Hold on. Tanmay, what were you asking in English? I just saw the chat box. Primary deficit. Okay. See, what primary deficit is? What primary deficit is? Primary deficit is your fiscal deficit minus interest payments. Now fiscal deficit is nothing but the borrowings. Now everyone borrows. Yes, you are not audible, but I hope I am audible. So everyone borrows for two reasons. Okay, there could be two reasons for borrowing. One reason of borrowing could be that I have to borrow because previous years I borrowed a lot and I have to pay that interest. So it's kind of the fact that because I had borrowed earlier, because I had borrowed huge principal amounts earlier, I have to pay that interest right now. Just to pay the interest of previous years, I have to borrow this year. So that is the kind of borrowing that you are doing for paying interest payments of previous years. The other kind of borrowing could be when you are borrowing fresh amounts, fresh principal amount. So borrowings can further be bifurcated into two parts: fresh borrowings, which essentially means fresh principal amount that you are borrowing, and the borrowings that has been done for paying off the previous interest payments. So if you sieve off interest payments, if you sieve off interest payments from your overall borrowings, what you will essentially get is fresh borrowings, or the principal amount that you had borrowed this year. Principal amount borrowed this year. This is what we are concerned, and this is what has happened this year. Because of the pandemic, the amount that you had to borrow fresh was huge, and this led to a huge fiscal deficit again. And this was all because of the fact that your tax receipts had gone down, whereas your revenue expenditure had gone up, which was leading to your revenue deficit to go up. I hope I am clear now. Excuse me, sir. There's a doubt. Yes, Kritika. Just a second. Let me clear the doubt of Tanmay. So, one doubt that I had regarding this is that since the entire borrowing is fresh, like
everything is principal, right? Because no loan payment as a whole is paying back. It's just the interest payment. So even for the entire loan entire borrowings that have been taken, for all of those, again interest should be paid anyway. So But like when you're if paying you are cash, borrowing today, if you are borrowing today, the interest will be due tomorrow, right? yeah. So the amount of borrowing that you are doing today, the interest will be in the next particular year. For that year, you might have to borrow again, because we have done so much of borrowing this year. You might have to borrow next year just to pay that interest. So next year your primary deficit might be low because there's not much fresh borrowing that you have to do. No, previous borrowings in any case are covered through interests. At times what happens is your interest is clubbed with your principal as well. Oh, okay. Yeah, so that also happens. Yes. Yes, Kritika. So my doubt was that government doesn't pay the interest from the revenue receipts. Does they always borrow to pay interest? It in most cases it does, because the interest payments are so huge. So as you have seen here, interest payments is such a huge amount that inevitably it has to borrow to basically finance it. So whenever the central government write off the loans, then the burden, who will bear the burdens, a bank or a government? The government of India. It is always the government of India, and that will all come under subsidies. Okay, fine guys, so this was us. What we will do in the next classes, I will then now start going through. At times it's clubbed with it, but I would actually go and see that what exactly is the principal amount is being clubbed with it. I will have to actually check it out, but seems like so. Seems reasonable that this should be the case, but I will still go back and check it out and let you know. I don't want to give you an incorrect information on this, but commonsensically what I can see is that this should be the case. Exactly, it should be like EMIs where you are actually paying the principal amount as well simultaneously. But still, I don't want to mislead you on that. I need to check it out. Also, sir, one more thing. Yeah. Third, in our syllabus, we also have the finance commission part, right? Yes. So, sir, you have made videos on that also. हाँ, मेरी जो सेकंड वाला जो मैंने लेक्चर भेजा था, जो जनवरी में जो फरवरी में बजट का लेक्चर हुआ था, उसमें जो सेकंड लेक्चर है उसमें फाइनेंस कमीशन कवर्ड है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू गो ऑन माई यूट्यूब, तो यूट्यूब के अंदर चैनल देख लेना, किसी एक उसके अंदर प्लेलिस्ट में देर आर वीडियोज ऑन दिस थिंग एज वेल, फाइनेंस कमीशन. I'll send you that video on the group. Same to you, all of you. Okay guys, Jai Hind, bye.